Okay, let's start with the Fibonacci sequence. Okay, let me check the pronunciation of this mathematician. This name, it's really interesting name. Uh, Fibonacci. Okay, Fibonacci sequence. Okay, so this is a sequence first of all, right? Sequence you have been reading from your childhood, right? In class 8th, 9th, 10th, whatever. And the element of that sequence is called Fibonacci number, right? Although in your syllabus it is mentioned topic as Fibonacci number, but it is a sequence and the element of that sequence is called Fibonacci number. So what kind of sequence is it? Is it a very special kind of sequence, right? First of all, it is a sequence of integer. Is sequence of integers starting with 1, and it will go on. And what are the further elements? Such that each next element that is called Fibonacci number, each next element will be sum of last two elements, previous two elements, better to say sum of previous two elements. Okay, so since we have said that it is we denote it like fn, and ये curly bracket का मतलब है sequence. So fn it's like starting with 1 and 1. So what will be the next element? Next element is the sum of previous two, so it will be 1 plus 1, that is 2. And then what will be the next element? Sum of the previous two. Now the previous two is these two, so it is now 1 plus 2 equal 3. Again the next element will be sum of previous two, so now the previous two elements are 2 and 3, so it will be 5 now. Similarly next element will be 5 plus 3, that is 8, then 8 plus 5, that is 13. So it will be go on. Okay, so these are called Fibonacci numbers. So if I ask you what is f1 equal to 1, then f2 is also 1. These n can take value as integer value, right? So f3 is 2, f4 is 3, and so on. So these are Fibonacci number. First of all you have to say it like this. And mathematically how can you represent this? You can represent it like this. f of n, कोई भी n, यहाँ पर ये इन्फिनिट तक जा सकता है, तो कोई भी n को हम ले लेंगे, तो उस n की वैल्यू क्या होगी? उसके प्रीवियस दो n का सम, तो इसका जस्ट पिछला n क्या होगा? n-1, और उससे एक और पिछला n क्या होगा? n-2. इनका जो सम होगा, दिस इज कॉल्ड द फिबोनाची नंबर. एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 3. वाई 3? क्योंकि पहले दो नंबर फिक्स है, जो तीसरा नंबर होगा वो पिछले दो नंबर्स का सम होगा, ग्रेटर देन इक्वल भी है. तो यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो टू डिफाइन द फिबोनाची नंबर मैथमेटिकली. ये है वर्ड्स में फिबोनाची नंबर का डेफिनेशन और सीक्वेंस का डेफिनेशन, और ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फिबोनाची नंबर, राइट. सो इतना ही है फिबोनाची नंबर का एसेंस. अब इससे आगे जो है इसके एप्लीकेशंस हैं और इसका कनेक्शन है जो
लास्ट तुम्हारे एग्जाम में पूछा भी है, तो वो है कि हाउ दिस फिबोनाची नंबर इज रिलेटेड टू द गोल्डन रेशियो, राइट? द गोल्डन रेशियो दैट वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास. So we will see that now. So for that one more thing you can see here, that this n, है ना, these n are the natural number, or integer that we have mentioned here also. पता होना चाहिए कि जो सिंबल चूज कर रहे हो वो क्या है ना. हवाई बेहोशी में नहीं लिख देना है कुछ भी. ओके, नाउ we have the topic that is relation of Fibonacci number with golden ratio जो हमने लास्ट क्लास में देखा था. फाइन, ओके. So for that, what we will do, we will take the ratio of consecutive Fibonacci number, consecutive Fibonacci number. ओके, तो मान कंजुगेटिव का मतलब एक के बाद एक, है ना. तो मान लो मैं fn+1 अपॉन fn लेता हूँ, ठीक है. तो हमारे पास पहले सीक्वेंस क्या है देख लो. सीक्वेंस है हमारे पास 1 1 2 3 5 8 13 एंड सो ऑन, राइट. सो पहला रेशियो क्या आ जाएगा, 1/1, नथिंग इंटरेस्टिंग. देन नेक्स्ट रेशियो क्या आएगा, 2/1, है ना. मतलब यहाँ पे n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, है ना, 1 to infinity, 1 to like this, that. So the second ratio is 2, third ratio is 3/2, है ना. Third ratio is 3/2, that is 1.5. Fourth ratio is 5/3, that is almost 3 6 6 7, right, and so on. If you keep on doing it, suppose let us do one more, fifth one also, 8/5, it is also 1.6. So if you do keep on calculating these things, what do we see? We observe one thing, that this number, this ratio, whatever we are getting, this ratio is getting, it is shrinking का मतलब समझता है, क्लोज आ रहा है रेशियो. ये रेशियो थोड़ा क्लोज आ रहा है. लाइक इफ यू सी, इन दोनों रेशियो के बीच में अंतर कितना है, 1 का अंतर है. इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 0.5 का अंतर है. इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 0.1117 का अंतर है. देन इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 0.0167 का अंतर है. सो as we are going further to the ratios, the difference between the ratio is very very small, right. तो from here, यहाँ ये सेंटेंस लिखना, from here we can see that ratio between, किस रेशियो की बात कर रहे हैं, रेशियो बिटवीन consecutive Fibonacci number
Fibonacci number is getting smaller as we go to higher value of n, and it seems that there is a limiting value. है ना, क्योंकि देख समझ इस बात को, मान ले पहले रेशियो था तेरा, फर्स्ट रेशियो था तेरा इतना बड़ा, उसके बाद तेरा रेशियो हुआ थोड़ा छोटा, उसके बाद तेरा रेशियो हुआ फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और ये हर एक स्टेप में जो ये डिफरेंस है बहुत बहुत छोटा होता जा रहा है। और सपोज कर ले एक बहुत बड़ी वैल्यू पर ये रेशियो जो है वो ऐसा हो गया कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है बहुत बहुत छोटा हो गया। तो लगता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ऐसा आएगा, आगे बढ़ते 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 ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर जो ये डिफरेंस है ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो यानी कि जब जीरो हो जाएगा डिफरेंस, तो ये एक सेचुरेशन पे आ जाएगा, एक फिक्स्ड लेंथ पे आ जाएगा, ये रेशियो फिक्स्ड हो जाएगा, और वो फिक्स्ड रेशियो गोल्डन रेशियो होगा। दैट लिमिटिंग वैल्यू इज गोल्डन रेशियो। that limiting value of ratio is golden ratio, and this is the relation between फिबोनाची नंबर एंड गोल्डन रेशियो। ये एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आया हुआ था। अब प्रूफ करना है कि कैसे इसका कैसे ये गोल्डन रेशियो ही होगा, कैसे पता, प्रूफ। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या है, 1 1 2 3 5 8 13 21, हाँ 21 सो आगे जाके जब ये बहुत आगे चले गया, सपोज यहाँ पर हम कोई 3 नंबर लेते हैं, राइट। कंसीडर बेटा consider 3 consecutive फिबोनाची नंबर, ठीक है। उसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। अगर पहला बी है, जैसे कि बुक में दिया हुआ है, तो कुछ भी ले सकता है। मान ले एक्स है, चल मान ले पहला एक्स है और दूसरा वाई है, तो तीसरा क्या होगा, एक्स प्लस वाई। तीसरा कुछ भी आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता, ध्यान देना। अगर पहला एक्स मान लिया और दूसरा वाई मान लिया, तो तीसरे को एक्स प्लस वाई होना पड़ेगा, तभी तो वो फिबोनाची नंबर में आएगा। और अब देख तू, अब इनका तू रेशियो ले, जैसे हम रेशियो ले रहे थे कंसेक्यूटिव रेशियो, राइट। द कंसेक्यूटिव रेशियो इज y अपॉन एक्स, एंड क्योंकि बाद का अपॉन पहले का ले रहे थे ना रेशियो, जैसे हमने यहाँ पे कैसे लिया था रेशियो, बाद का अपॉन पहले का, बाद का अपॉन पहले का, बाद का अपॉन पहले का, ठीक। तो बाद का पहले का, बाद का पहले का, और ये आया एक्स प्लस वाई अपॉन वाई, ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं कि जब बहुत आगे चले जाएंगे हम इस सीक्वेंस में, फार अलोंग इन दिस सीक्वेंस, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब इनका डिफरेंस इतना कम हो जाएगा कि दोनों, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि अगर मान ले हमने यहाँ से स्टार्ट किया, रेशियो इतना बड़ा था, आगे बढ़े तो रेशियो घटा, और आगे बढ़े तो रेशियो और घटा, बढ़े तो घटा, तो करते 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 एक बहुत आगे जा कर के एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर रेशियो लगभग बराबर हो जाएगा। तो इस रेशियो और इस रेशियो में डिफरेंस नहीं होगा, तो इसको हम ऑलमोस्ट बराबर मान सकते हैं। और ये इक्वेशन क्या है, याद आ रहा है कुछ? ये इक्वेशन क्या है? दिस इज नथिंग बट
नथिंग बट इक्वेशन फॉर गोल्डन रेशियो, इक्वेशन फॉर गोल्डन रेशियो। ये लास्ट क्लास में देखा था ना हमने कि गोल्डन रेशियो को ऐसे ही क्वेश्चन आता है करके, देखा था नहीं देखा था, इसलिए लास्ट क्लास इंपॉर्टेंट थी। है ना। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि जो y/x है वो गोल्डन रेशियो होगा। इक्वेशन फॉर गोल्डन रेशियो दैट इज गोल्डन रेशियो क्या है हमारा, y/x है ना गोल्डन रेशियो, दैट इज दिस लिमिटिंग वैल्यू is same, limiting value is equal to golden ratio y/x, proved। ये हमारा प्रूफ हो गया। फाइन, तो यही था फिबोनाची नंबर का पहला एक इम्प्लीकेशन बोल सकता है, या एक जहाँ पर फिबोनाची नंबर काम आता है, सॉरी गोल्डन रेशियो का एक मैनिफेस्टेशन बोल दे, या गोल्डन रेशियो कहाँ पर हमें दिखता है प्रैक्टिकल लाइफ में और प्रैक्टिकल मैथ्स में, वो दिख गया। गोल्डन रेशियो कहाँ पर दिखता है हमें, फिबोनाची नंबर का जब हम कंजुगेटिव रेशियो लेते हैं तो वो रेशियो एक लिमिट पर आकर के सैचुरेट हो जाता है, और जो सैचुरेशन वैल्यू होती है वही गोल्डन रेशियो के बराबर होती है। दैट्स इट, सिंपल।